આફ્ટર ગ્રેજ્યુએશન હું એક કોલેજમાં આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર હતો. ત્યાં 6 મહિના ભણાવીને હું અહીંયા કચ્છ શિફ્ટ થયો. અહીંયા કચ્છ શિફ્ટ થયો તો અહીંયા મેડમથી મુલાકાત થઈ મારી અને હું અહીંયા જોઈન થઈ ગયો એઝ અ ટીચિંગ ફેકલ્ટી. ટીચિંગ હંમેશા મારા માટે એક પેશન જેવું છે. હું અહીંયા ડેલી અહીંયા ભણાવું સાથે સાથે હું ગાંધીધામમાં પોતાની ઓફિસ પણ છે, ત્યાં પોતાની પર્સનલ પ્રેક્ટિસ પણ મારી ચાલુ છે. ઇન્સ્ટિટ્યૂટની વાત કરું તો ઇન્સ્ટિટ્યૂટે અમે અહીંયા સ્ટુડન્ટ્સને વસ્તુનું પણ ધ્યાન અપાવે છે. ખાલી પેપર ઉપર તમે ડિઝાઇન કરો છો એ મહત્વ નથી, મેઇન પણ છે કે તમે એને એક્ઝિક્યુટ કેવી રીતે કરાવો છો. તો એ એક્ઝિક્યુશનના નોલેજ માટે અમે સ્ટુડન્ટ્સને સાઇટ વિઝિટ્સ કરાવીએ, હેન્ડ્સ ઓન વર્કશોપ્સ કરાવીએ. અમે લોકો બહારથી કાર્પેન્ટર્સને બોલાવીએ છીએ કે અલગ અલગ જે બી અમારા વેન્ડર્સ હોય એ લોકો આવીને સ્ટુડન્ટ્સને અહીંયા બધું શીખાડે કે એ લોકોને નોલેજ આવે કે જે તમે ડિઝાઇન કરો છો એ વસ્તુનું એક્ઝિક્યુશન કેવી રીતે થશે. હું વધારે નહીં બોલું. હવે અહીંયા તમે સ્ટુડન્ટ્સનું કામ જોઈ શકો છો. આ બધા આપણા સ્ટુડન્ટ્સ છે. એક કરીને ઇન્ટ્રોડક્શન. મેં પ્રીતિ મસુરિયા, આઈ એમ અ હાઉસવાઇફ. હું એક હાઉસવાઇફ છું અને મને આ બહુ સારો પ્લેટફોર્મ મળ્યો છે. તો હું એન્ટ્રી ડિઝાઇનિંગ શીખીને મારા ડ્રીમ્સ પૂરા કરીશ. મને ઇન્ટિરિયર ડિઝાઇનિંગમાં બહુ ઇન્ટરેસ્ટ હતો એટલે હું અહીંયા આવી અને મને બહુ સારું ફીડબેક મળ્યું. મને બહુ જ ગમ્યું અહીંયા આવીને, ભણવાનું બહુ સારું. આ બધા પ્લાન્સ બનાવ્યા છે અમે. આ એલિવેશન્સ છે. હા, અમે પ્લાન્સ બનાવ્યા છે. આ એના એલિવેશન્સ છે. આ પણ એના એલિવેશન્સ છે બધા. આ લિવિંગ રૂમ છે. એનું થોડું એક્સપ્લેનેશન આપો. એમાં કઈ સાઈડના એલિવેશન કહેવાય છે એની. આ પ્લાન છે. એની મેન એન્ટ્રન્સ છે. આ છે એનો લિવિંગ રૂમ, હોલ. આ હોલનો આ એલિવેશન્સ છે. એટલે હોલમાં જે પ્લાનમાં જે ફર્નિચર અહીંયા શો કર્યું છે એ એઝ વોલ ઉપર કેવી રીતે આવશે એનું અમે એલિવેશન્સ બનાવીએ છીએ. ને સ્કેલમાં બનાવીએ. એવી જ રીતે આ બાથરૂમનું એલિવેશન છે. જે બાથરૂમની રિક્વાયરમેન્ટ્સ હોય, વોશ બેસિન જોઈએ એને પણ દરેક રીતે, પછી મિરર જોઈએ, એક કબર્ડ જોઈએ, એમાં મિરર જોઈએ, વુમન્સ એસેસરીઝ રાખવા માટેની જગ્યાઓ જોઈએ. આ બધા એનો, અને એને પણ અત્યારે ડેકોરેટ કરવું પડે છે, ઇટ્સ કમ્પલસરી ફોર અસ. એટલે એને અમે નોર્મલ ના રાખી શકીએ. આ બેડરૂમ છે. આ બધા થીમ પ્રમાણેના છે, મારી ટ્રેડિશનલ થીમમાંથી. તો એના પ્રમાણેનું છે. આ બેડરૂમનો આ બે વિન્ડોઝ છે. આ બેડનો આ સાઈડનો પાર્ટ છે. આ અહીંયા કને મેં એક ઓલું પાર્ટીશન રાખ્યું છે જે આવું લાગશે, આ વોલ ઉપર આ દેખાશે. અને આના ઉપર મેં એસેસરીઝ રાખેલા છે. બરાબર છે. અને આ કબર્ડનું પાર્ટીશન છે. આ બહુ સરસ. અને કિચન છે. કિચન સૌથી ડિફિકલ્ટ હોય અમારી ઇન્ટિરિયર ડિઝાઇનિંગમાં. થોડું બહુ ડિફિકલ્ટ પડે અમને, પણ અમને ફેકલ્ટીઝ બહુ સારા મળ્યા છે. તમે બહુ સારી રીતે કરી શકીએ છીએ. બહુ ટફ છે ઇન્ટિરિયર ડિઝાઇનિંગ. તો આ એનું એલિવેશન છે. આ ટેબલ, ડાઇનિંગ ટેબલ છે. આ પ્લેટફોર્મ છે. આ બર્નર છે. ને એના ઉપરનું આ જે ચીમની ને બધું દરેક વોલ ઉપર આવેલું છે. આ ડોર આવે છે. અને અમારો બહુ જૂનો પ્લાન છે જે ફેલ ગયો છે. એટલે અમે ઇમ્પ્રૂવ કેટલું કરીએ છીએ તમે જોઈ શકો છો. આ જૂના પ્લાન છે અને આ નવો પ્લાન છે. નેક્સ્ટ. हेलो, आई एम प्रियांशी जैन. आई एम इंटीरियर डिजाइनिंग स्टूडेंट एट विजुअल पैलेट. अगर इंस्टीट्यूट की बात की जाए तो यहाँ गांधीधाम में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है. एज ए विजुअल पैलेट जागृति मैम ने बहुत अच्छे से फैकल्टीज दिए हैं और नॉलेज भी बहुत अच्छे से मिल रहा है. हम लोग अभी फर्स्ट सेम फिनिश करके सेकंड सेम में आए तो हम लोग को बहुत सारी चीज़ें और भी लर्न करनी इंटीरियर डिज़ाइन से रिलेटेड. एंड बाकी अच्छी फैकल्टीज अवेलेबल है विजुअल पैलेट में. और हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है. लाइक ये मेरा वर्क है. लाइक हम लोग ने वर्ड को रिप्रेजेंट करना सीखे हैं. वर्ड को रिप्रेजेंट, लाइक आप हैप्पी हो तो आप किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो. आपको रेस्ट करना है तो आप किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो. आपको एक फ्लो को रिप्रेजेंट करना है तो आप किस वे पे बता सकते हो. ये सब वर्ड्स वगैरह भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक इंटीरियर की लाइफ में. पैटर्न से रिलेटेड, उससे कलर से रिलेटेड, आप किस वे में किस चीज़ को रिप्रेजेंट करना चाहते हो. इसमें से कोई इमेज
वो समझाइए। जैसे ये है, जी आपको किसी रेस्ट को मतलब बताना है कि हमें कुछ रेस्ट करने के लिए लाइक कुछ इमेज को बताना है, तो हम किस वे पे बता सकते हैं। तो ये अपना ही क्रिएशन से आप किस वे पे थिंक करते हो, क्या सोचते हो, किस वे से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो। तो ये मैंने सोचा कि रेस्ट के लिए हम एक स्विंग बना के भी वो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। लाइक ये बॉल का शेप दे दिया है सर्कल वे पे उस टाइप के बताकर। और ये सेंटर में जो है बाजू में, ये क्या सिंबलाइज करता है? ये स्केल में भी सिंबल हो सकता है, म्यूजिक रिदम में लाइक स्केल टेढ़ी एढ़ी होती है, उस वे पे बता सकते हैं। ओके। Hello, my name is Krishita and I am an interior designer student in Visual Palette Design Studio. If we talk about Visual Palette Design Studio, बहुत अच्छी कॉलेज है। बाकी कॉलेज के कंपैरिजन में दिस इज़ द बेस्ट कॉलेज आई हैव मेट। आई मीन, और यहाँ पे पार्शलिटी तो बिल्कुल नहीं होती। लाइक अगर आप दूसरी कॉलेजेस में जाओगे तो पार्शलिटी तो बहुत होती है वहाँ पे फैकल्टीज एंड स्टूडेंट्स के बीच में। सो यहाँ पे कंपोजिशन हमने बनाया है, यहाँ पे नेगेटिव एंड पॉजिटिव के बारे में हमने बताया है कि सपोज ये इतना एक स्पेस है तो ब्लैक कलर डिपिक्ट्स नेगेटिव स्पेस एंड वाइट डिपिक्ट्स द पॉजिटिव स्पेस। तो ये किसके लिए, ये क्या सिंबलाइज करता है? ये मतलब ये स्पेस ही है। अगर सपोज हम कॉन्सेंट्रिक बनाया है कि ये जो बीच वाला जो पार्ट है वो सारे से लाइन्स आके सब बीच में आके रेस्ट हो जाती है। अच्छा, तो आपको इधर कितना साल हो गया? 6 मंथ्स हुए। 6 मंथ्स। तो रिजल्ट आ गया आपका? हाँ, फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया। कितना रिजल्ट आया, कैसा है रिजल्ट? कौन सा ग्रेड? हाँ, बी ग्रेड आया। तो इतना सारा अच्छा हो रही है बातें, तो आपके कितने सारे फ्रेंड्स इधर आए आपके साथ? मेरे सारे फ्रेंड्स तो सब बाहर गए कि मैं सबसे 10th के बाद मैं यहीं पे आ गई। सो मुझे ऐसा अलाउ नहीं था घर से। तो मेरी मम्मी की फ्रेंड है ये जागृति मैम, तो मम्मी ने सजेस्ट किया कि यहाँ पे आइए। तो हमारे उधर अंजार में एक गर्ल्स स्कूल है, वहाँ पे 1800 प्लस स्टूडेंट्स होंगे, गर्ल्स स्टूडेंट्स है। हम उनको मोटिवेट करना चाहते हैं। तो मिस तो वो अपना तारीफ करेंगे, लेकिन उनसे आप लोगों ने क्या सीखा और आप उनको मतलब मोटिवेट करना है, तो क्या सजेशन देंगे? मैम से हमने क्या सीखा? जी, मैम तो हमारी इंस्पिरेशन है। मैम तो मतलब एक रोल मॉडल है कि उनको देखते ना तो ऐसा लगता है कि नहीं हमको तो उनके जैसा बनना है। एकदम अप टू डेट रहते हैं, जो भी हो कुछ भी हो एकदम जो भी चाहिए एकदम परफेक्ट चाहिए, लाइन बेस आड़ी टेढ़ी नहीं चाहिए एंड ऑल पीसफुल नेचर। हाँ। तो ये आप कोई भी बता सकते हैं कि अगर दूसरे बच्चों को हम इधर लाना चाहते हैं तो उनको किस तरीके से मोटिवेट किया जाएगा? एक्चुअली मेरा ये मानना है कि आप गर्ल्स की बात करें चलो अच्छा है, बट यहाँ पे जो लोगों की थिंकिंग है ना, उनको ऐसा है कि गांधीधाम में कुछ है ही नहीं। 10th-12th के बाद वो अपने बच्चों को बाहर ही भेजना चाहते हैं, बट वो ये नहीं दे रहे कि आप किसी इंस्टीट्यूट को मौका दो, एटलीस्ट 1 ईयर तो दो, उसको भी डेवलप करने में टाइम लगेगा। उन्होंने भी न्यू खोला है, फैकल्टी धीरे लास्ट 3 ईयर से विजुअल पैलेट है, बट धीरे धीरे वो भी ग्रो हो रहा है। आज फर्स्ट ईयर और 3rd ईयर के स्टूडेंट में बहुत डिफरेंट है। हमको ज्यादा अच्छी फैकल्टीज मिल रही, शायद फर्स्ट ईयर स्टूडेंट में मैम ने आई थिंक अकेले ही टीच किया होगा सबको। जी, हम लोग के पास 3 फैकल्टीज है। अभी तो नए फैकल्टीज आ गए, सर है, मैम है। तो बहुत सारी जगह पे जब हम बात करते हैं फैशन डिजाइनिंग, तो उनके मन में यही होता है वो कपड़े पहनेंगे, है ना, शॉर्ट कपड़े होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे पुराने जमाने में जो भी आर्टिस्ट थे तो उस टाइम पे इतना टेक्नोलॉजी नहीं थी, फिर भी इन लोगों के पास आइडिया आता था। वही आइडिया है जो आजकल हम ये जो यूज कर रहे हैं, है ना। बेसिकली आइडिया तो उन लोगों ने वो लोग देके गए, हम उस पर थोड़ा सर्च करके उस पर डीपली जा रहे हैं, है ना। तो फिर भी आज के जमाने के अंदर जब ये ऐसी बात होती है फैशन डिजाइनिंग की, तो हमारे मन में वही नैरो माइंडेड, है ना, थॉट्स, और वही तो अभी जो हम उसको अच्छे से समझाना है कि ऐसी बात नहीं है।
हम जो सोचते हैं वो नहीं होता है ना। तो आप एज अ फैकल्टी तो ये सारे स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते होंगे, है ना। तो दूसरे बच्चे को हम ये मीडियम के द्वारा, है ना, ये जो हमारा एक चैनल है, यूट्यूब चैनल द रीडर साचो, इसमें हमारे सागर भाई चर्चेटा करके है, उनका एक अभियान चल रहा है, मेरा घर मेरा पुस्तकालय। मीन्स कि हर एक घर में एक बुक होनी चाहिए और वो आदमी पढ़ना होना चाहिए। और हमारे गुजरात के बड़े एक साहित्यकार है गुणवंत साहब, उन्होंने ऐसे बोला है कि जिस घर में 2 बुक्स नहीं है उनके घर पे कभी बेटी का व्यवहार नहीं करने का। तो इट मीन्स कुछ ना कुछ बात तो हाँ। तो हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए और मोस्ट ऑफ साहित्यकार है, लिटरेचर के फील्ड से रिलेटेड है। तो इस जमाने में इतना एक्सपांड हो रहा है नॉलेज, फिर भी लोगों की मेंटालिटी ऐसी है, तो उनको हम किस तरीके से कन्विंस करेंगे एज अ फैकल्टी? आपका इसी चीज के लिए विजुअल पैलेट एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लेता है, जिसके कारण हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं। अवेयरनेस के लिए हम लोग वर्कशॉप्स कंडक्ट करते हैं, क्योंकि इंटीरियर डिजाइन भी एक कैसा हो जाता है लोगों को कि हमने फर्नीचर्स ही रखने हैं, सोफा यहाँ पे आया, पर्दा आया, पलंग आया, वो सब। तो उसमें डिटेल में क्या होता है, क्या डिटेल्स होती हैं, उसको डीप में जाने के लिए क्या कलर कॉम्बिनेशंस होते हैं, क्या कलर पैलेट्स होते हैं हमारे पूरे इसमें वेरिएशंस में। तो इनकी अवेयरनेस के लिए, जैसे आपने फैशन डिजाइनिंग बोला, फैशन डिजाइनिंग के लिए भी हमने अभी रिसेंटली एक प्रोग्राम कंडक्ट किया था कि फैशन डिजाइनिंग उसमें क्या होता है डीपली। हमने ऑल ओवर कच्छ के जो फैशन डिजाइनर्स हैं उनको बुला के उनके डिजाइन रिप्रेजेंट किए कि वो कितना वास्ट फील्ड है। जैसे आपने फैशन डिजाइनिंग में देखा कि फैब्रिक्स, हम लोग सिर्फ लगता है कि सिर्फ फैब्रिक से ही फैशन डिजाइनिंग हो सके, पर हमने यहाँ पे पेपर से, पॉलिथीन बैग से, अलग अलग मटेरियल से यूज किया। उसी तरीके से फैशन डिजाइन हो या इंटीरियर डिजाइन, हम यहाँ पे लोगों को मटेरियल की नॉलेज भी देते हैं कि क्या मटेरियल है, क्या फैब्रिक्स यूज कर सकते हैं, कौन सा फैब्रिक है जो क्लाइमेट को भी साथ दे, जो आजकल ग्लोबल वार्मिंग आ रही है उसी हिसाब से। तो वो भी अवेयरनेस हम दे रहे हैं। इसी अवेयरनेस के लिए हम लोग अलग अलग वर्कशॉप्स और ये सब कंडक्ट करते हैं। और मैं बोलूंगी कि कुछ नहीं तो एक बार आप लोग आके जो विजुअल पैलेट के वर्कशॉप्स होते हैं या जो प्रोग्राम्स होते हैं वो अटेंड कीजिए, तो आपको एक वास्ट नॉलेज आएगी, डीप नॉलेज आएगी। और अगर वो वर्कशॉप भी अगर आप अटेंड नहीं कर सकते हैं तो ये कॉलेज तो हमेशा खुली है, मैम हमेशा है, मैम हमेशा स्टूडेंट्स को काउंसलिंग भी करती है कि उनको क्लैरिटी नहीं होती है कि हमें किस फील्ड में जाने का है, हमें फैशन डिजाइनिंग लेनी है, इंटीरियर डिजाइनिंग, या वो डिजाइनिंग के लिए फिट हो पाएंगे या इंजीनियरिंग के लिए। तो उसके लिए मैम हम यहाँ पे स्टूडेंट्स को काउंसलिंग भी देती है कि वो आके अपनी काउंसलिंग करवा सकते हैं और डीप में नॉलेज भी ले सकते हैं, यहाँ पे आके काम दे सकते हैं। हम लोग 6 मंथ कोर्सेज भी करते हैं, इंटीरियर डिजाइन के भी हो, जैसे एंट्रेंस एग्जाम हो या दूसरे एग्जाम्स हो, उसके 6 मंथ कोर्सेज भी होते हैं। उनका क्वालिफिकेशन 10th के बाद एंड सर्टिफिकेट तो कोई भी 10th वाला बच्चा वो 10th के बाद ज्वाइन कर सकता है। हाँ, डिजाइन के। फिर वो 12th के बाद भी कुछ, हाँ, 12th के बाद यहाँ पे वो क्लासेस कर सकता है, जो ये कोर्स है डिप्लोमा कोर्सेज। 10th के बाद डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं और 12th के बाद जो एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशंस होती है, जो आर्किटेक्चर है या इंटीरियर डिजाइन है बैचलर्स का, उसमें एनरोल करने के लिए, या NID है जो बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं बाहर के भी, रिनॉल्ड इंस्टीट्यूट, उसकी भी ट्रेनिंग एंट्रेंस एग्जाम की यहाँ पे दी जाती है। हमारे से काफी यहाँ के स्टूडेंट्स वहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम पास करके काफी अच्छे इंस्टीट्यूट्स में। तो ये कच्छ लेवल में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम लोगों को यहाँ पे ही, जैसे बोलते हैं कि किसी के पेरेंट्स बाहर नहीं जाने देते एज अ गर्ल, तो ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग सबको एक इक्वालिटी देते हैं और हमें भी गांधीधाम को और कच्छ को प्रोग्रेस करने के लिए ये हेल्प करेगा उस हिसाब से। सो बेसिकली चाहे वो फैशन डिज़ाइनिंग है या चाहे वो इंटीरियर डिज़ाइनिंग है, हमारे लिए डिज़ाइनिंग इज़ एक्चुअली अ बैलेंस बिटवीन द कंफर्ट लेवल एंड इट्स ब्यूटी लेवल। सो एक डिज़ाइनर अच्छी डिज़ाइन तभी बना पाएगा अगर वो कंफर्ट जोन में देगा और दिखने में भी अच्छा होगा। सो बेसिकली बैलेंसिंग बिटवीन द कंफर्ट जोन एंड एस्थेटिक वैल्यू इज डिज़ाइनिंग इज ऑल अबाउट। और विजुअल पैलेट हमेशा यही ट्राई करता है कि यहाँ से जो स्टूडेंट्स पास आउट होके जा रहे हैं उनको दोनों की नॉलेज है कि भाई जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं या गारमेंट्स बना रहे हैं या तो कोई स्पेस डिज़ाइन कर रहे हैं, उसको हम और ज़्यादा कंफर्टेबल कैसे बना सके और ज़्यादा ब्यूटीफुल कैसे बना सके।
आजकल हर जगह कुछ ना कुछ गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ना कुछ हेल्प मिलती रहती है। तो बहुत सारे बच्चे जो रिजर्वेशन कोटा से आते हैं, तो उनके लिए भी इधर कुछ फैसिलिटी शायद होगी, तो वो किस तरीके से है, ताकि हम लोग आगे जो बच्चे कुछ ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो कोई आपको गवर्नमेंट का हेल्प हाल फिलहाल तो हम हमारी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम वो चीज़ को कर सके, पर ये हमारी ज़रूर एक अपील रहेगी गवर्नमेंट से कि अगर गवर्नमेंट हमें इसमें हेल्प कर सकती है तो स्टूडेंट्स को भी काफ़ी लेवल तक एक राहत मिल जाती है और हमें भी पढ़ाने में हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कवर कर सके, सारे ही क्लास के लोगों को सबसे ज़्यादा कवर कर सके। अभी हम लोग अपने कंप्यूटर क्लास